नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी मरीज की देखभाल करना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे हैं, जिसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में रिकवरी रेट को एक उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। बेकाबू होते हालातों के बीच डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि रिकवर हो चुके मरीज जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही रिकवर होने के बाद भी मरीजों को पोस्ट रिकवरी टेस्ट कराने की भी सलाह दी जा रही है। ऐसे मरीजों के लिए अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना संक्रमित मरीज कुछ दिन बाद ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि उसमें वायरस अब नहीं है, लेकिन ये वायरस जब बॉडी के अंदर गया तो उससे कितना नुकसान हुआ ये बाद में पता चलता है। मरीज तो कोविड नेगेटिव हो गया, लेकिन वायरस ने जो उसे नुकसान किया उसे सही होने में ज्यादा समय लगता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के हार्ट में दिक्कत हुई तो उसे ठीक होने में समय लगता है। इसी प्रकार लंग्स, किडनी और दूसरे अंगों को ठीक होने में भी समय लगता है। कई बार इसके साइड इफेक्ट लंबे समय तक शरीर में रहते हैं। कोविड-19 शरीर के किन प्रमुख अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और कोविड से ठीक होने के बाद क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पूरा पैनल मौजूद होगा, जिनके साथ हम इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कोविड से जुड़े आपके जो तमाम सवाल हैं उनका भी जवाब लेंगे। हमारी फोन लाइन आपके लिए खुल चुकी है 011-233-87031 और इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं @DD News Live पर। इस कार्यक्रम को मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी आगे बढ़ाएंगे, जो वर्चुअली इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम लोग कम से कम संख्या में ऑफिस आ रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे कुछ सहयोगी घर से ही काम कर रहे हैं। अमृत। Absolutely, Shaila, and we would encourage our viewers to stay at home and only step out of the home if absolutely necessary. You know you are being infected, and more research says that this virus is now, the transmission is happening through the medium of air. It is airborne. That means anybody who could be infected, if he coughs, sneezes, or even talks, and you're in close proximity, you could contract the virus. So try and stay at home. If you have to if it's absolutely necessary, only then step out of home. And when you do, mask yourself up, preferably double mask yourself up, even within the home. When you are in the common areas, try and wear a mask and avoid not wearing a mask at home, and take proper care, maintain physical distance of 6 feet or 2 gaz ki duri, as it's said. And those are the weapons that we have to defeat the infection. In fact, today, as Shaila said, we'll be talking about the treatment in post-COVID care. Once you've recovered from COVID, what is the treatment that you need to look at? As Shaila said, we'll talk to our panel of experts over the next 1 hour. But if I can request my producer to put on air what treatment, what care we need to take care. Well, try and stay in a well-ventilated room with a separate toilet. Even if you have completed 14 days, you need to have a more isolation period. You can step out of your room, but and meet the other family members. But even post-COVID, for a few days, try and stay in a separate room with a separate toilet. You may have become non-contagious, remember, after 10 days or 14 days, but the virus, dead virus, still remains within you. It needs time to sort of get totally killed and go out of your system. Stay away from pregnant women for some more days. Stay isolated for some more days. Stay away from pregnant women. Stay away from children and persons with comorbidities. Restrict movement within the house. You can move out of your room, but try not sharing that room with other people, even if you have completed 14 days for some more days. Do not attend any social gathering. Please avoid going out and attending any social gathering. You still might be able to give the infection to other people. Wash your hands thoroughly and avoid sharing household items such as dishes,
glasses, etc. Wear your mask all the time. Remember, this is very, very important. Wear your mask even at home. Have a nutritious diet. Visitors should not be allowed inside your house. Ask your relatives, friends, or other family members who might want to come in and meet you. Tell them, talk to them over the phone. Tell them we will once I'm completely out of it. After a few days, they can come in, but we should avoid meeting visitors. Exercise a little every day. That's important. Take a walk. Exercise, do light exercise, do yoga if you can, do breathing exercises. That's very, very important. And play a few memory games on your tab, on your computer, whatever you have. Play a few memory games and constantly keep checking your oxygen level. It should be above 95 and so. Sheila? बिल्कुल, तो ये तमाम बातें जो अमृतपाल सिंह ने आपको बताई, इनका कोविड महामारी से अगर आप उबर जाते हैं उसके बाद भी आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस संक्रमण से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। अपने तमाम डॉक्टर्स से हम आपका तारुफ कराएं, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि इस समय इंडिया में क्या कुछ हालात हैं कोरोना के। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 3,29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,56,082 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,15,221 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,876 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,49,992 पहुंच चुका है। तो वहीं देश भर में कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेज रफ्तार से जारी है। देश भर में अब तक 17,27,00,000 से अधिक कोविड टीके की डोज दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 25,03,756 टीके की डोज दी गई हैं। तो कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है। हमारे तमाम विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर आशीष भल्ला है, प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन इंचार्ज कोविड हॉस्पिटल PGI-MER चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर ध्रुव चौधरी प्रोफेसर हैं और हेड हैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन PGI-MS रोहतक से। और साथ ही साथ वो स्टेट नोडल ऑफिसर कोविड एजेंसी हरियाणा से भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। साथ डॉक्टर वेद प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, HOD हैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन KGMU लखनऊ से। आप तीनों ही डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर आशीष भल्ला, सबसे पहले अगर आपके ही पास आना चाहूँ तो ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी तरह से आराम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ठीक होने के तुरंत बाद ही अपने वर्क प्लेस पर लौट जा रहे हैं और नॉर्मल रूटीन जो है उनका वो शुरू कर रहे हैं, काम शुरू कर दे रहे हैं। जबकि एक्सपर्ट्स बहुत सारे ऐसा भी बोलते हैं कि इसका असर बाद तक भी रहता है और बाद में भी अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, आराम करना जरूरी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, आपने ये एक अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इसमें एक कैच है। इस सवाल के अंदर ही एक कैच है। अगर आप देखें कि 98% नियरली 98% लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं और 85% प्लस लोग जो हैं उनको माइल्ड डिजीज हो रही है। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो घर पे रह के ही थोड़ी बहुत दवाई लेने से, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो रहे हैं। इस तरह के मरीज पूरी तरह सिम्टम खत्म होने के 72 घंटे, 48 या 72 घंटे यानी कि 2 या 3 दिन के बाद अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। लेकिन उनको अपने काम पर वापस जाने के टाइम पे पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपना मास्क वगैरह पहन के जाना पड़ेगा ना। दूसरे किस्म के जो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ देर तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उनके लंग्स में कुछ थोड़ी प्रकार का डैमेज हो सकता है। और तीसरे किस्म के लोग हैं जिनको ICU में इंटेंसिव केयर की या थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की
ज़रूरत पड़ती है या किसी किस्म की वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनके लंग्स में डैमेज कुछ ज़्यादा हो सकता है। जो माइल्डली सिम्टोमेटिक केसेस भी हैं, उनमें भी जो देखा गया है कि बॉडी एक्स, जिसमें कि शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, थकान रहना, नींद आते रहना, इस जी। किस्म के सिम्टम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टम्स 3 या 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, पर कुछ लोगों में ये सिम्टम्स कुछ ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर सकते हैं। दूसरे किस्म के लोग जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी, उनमें सांस की तकलीफ कुछ ज़्यादा देर तक रह सकती है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन मेजॉरिटी लोग, 80 से 85% लोग जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, अपने सिम्टम्स खत्म होने के 48 से 72 घंटे के बाद प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए अपने वर्क प्लेस पे वापस जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी बीमारी को 7 से 10 दिन हो चुके हैं। जैसे आपने डॉक्टर साहब सांस की बात कही, लंग्स में फाइब्रोसिस बनने लगता है ऐसा बताया जाता है और इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार तो ये समय पर ठीक हो जाता है। अगर इसका सही ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो क्या ये लंबे समय तक के लिए और हमेशा के लिए भी क्या रह सकता है? क्या ये बात सही है? देखिए, आपने जो ये सवाल पूछा है, इसको थोड़ा सा मैं बदल के इसका जवाब देना चाहूँगा। जो ये कोविड बीमारी है, ये एक तरह का वायरल निमोनिया है। इस वायरल निमोनिया में कुछ लोगों में ये लंबे समय तक इस निमोनिया के कारण जो लंग में डैमेज है, वो 4 या 6 हफ्तों के बीच में रह सकता है। बहुत कम लोग हैं जिनमें ये फाइब्रोसिस के रूप में, फाइब्रोसिस एक तरह का परमानेंट लंग डैमेज है जो रिकवर नहीं होता। तो ये कहना कि कोविड-19 के कारण लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है, तो ये गलत बात है। ये एक तरह का प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिसको ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं, तो इसको फाइब्रोसिस कहना गलत होगा। मेजॉरिटी लोगों में 4 से 6 हफ्ते में जो भी ये लंग में आपके इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जो ठीक हो जाएगी और वो परमानेंट डैमेज में, बहुत थोड़े से लोगों में ये परमानेंट डैमेज में तब्दील होगा। जी, अमृत। And Professor Bala, one clarification on that. You said that in 6 to 8 weeks it will recover in most patients, whatever damage it may have done to the lungs. But this is without any medication, right? Once you've completed your course of the antibiotic, or if your doctor has put you on steroids for whatever number of days, 6 days, etc. Once you're out of COVID, you do not need any medication, and this repair mechanism happens on its own. Is that right, Professor Balla? I think Dr. Dhruv will be able to give a better answer to this, but whatever is my understanding of the pathophysiology, not every patient behaves in the same manner. अगर आपके लंग में थोड़ा डैमेज है तो वो हो सकता है 2 हफ्ते में ठीक हो जाए, आपको 8 या 10 दिन के स्टेरॉइड से ज़्यादा की डोज की ज़रूरत नहीं पड़े। कुछ लोगों में ये डैमेज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है, उनमें हो सकता है आपको लो डोज स्टेरॉइड्स कुछ 10 दिन या 2 हफ्ते एक्स्ट्रा खाने पड़े आपकी छुट्टी होने के बाद भी। कुछ लोगों में ये डैमेज उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और उसमें 4 से 6 हफ्ते तक भी स्टेरॉइड लेने की या कोई इस तरह की दवाई लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये असेस करना क्लिनिकली कि आपको शुरुआत जब आप एडमिट होते हैं आखिर तक कितना डैमेज हो जाएगा, ये शुरुआत में कहना मुश्किल है। आपका रिस्पॉन्स देख के, आपकी बीमारी किस तरह से प्रोग्रेस करती है उसके ऊपर देख के ये सारे डिसीजन दवाई देने के, 2 हफ्ते तक देने के, 4 हफ्ते तक देने के, 6 हफ्ते तक देने के, स्टेरॉइड या कुछ और किसी भी और तरह की दवाई देना, ये क्लिनिकल डिसीजंस होते हैं। ये एक ही तरह का डिसीजन सब मरीजों के लिए नहीं लिया जा सकता।
All right. Professor Chaudhary, let's begin from the beginning. The government says 10 days of isolation and then 14 days of isolation within the home, and then you are COVID free. What should be the number of days that the person should stay at home? As Sheila asked, should he or she refrain from going out at social gatherings or at other people's places or even their workplaces, etc.? What should be the number of days, the protocol on that? You see, you just heard Dr. Ashish Bhalla talking about it. Myself and Dr. Ved Prakash both are victims of COVID. He had just returned back day before yesterday. Myself had twice COVID in the first and the second one, and I went back. You see, to say that somebody has to stay for 21 days at home, I think it's just not possible. Now, I think what Dr. Bhalla has said is very true, that if you have become asymptomatic after 7 days, and there is no fever for 3 to 4 days, you are fine. That probably is the time you may think in terms of one. Secondly, you must remember that the virus most of the time tends to be, it gets killed by the body or the other ways in 8 to 9 days. So that is the reason we say that after 10 days, spreading of infection are unlikely, except in the cases where you have a very heavy load or you are immunosuppressed, where there can be a persistence of virus for the long term. That is point one. Second point is, disease takes place in second week. Therefore, it is good that we wait up to 14 days or so. But nevertheless, as Dr. Bhalla said, in 85% of the people, they will be fine. So you have to be a little extra careful. You need to do patients with comorbidities, especially overweight, diabetes, or immunosuppressed. There has to be a mix. There has to be a matching, because if you start putting everybody for 3 weeks or 4 weeks, and in this particular second wave, when 1/3 of your staff is ill, it will be very difficult for us to run the services. That is why first of all, CDC was the one which started up, said, okay, you are afebrile, you are asymptomatic, after 5 to 7 days of illness for 3 to 4 days, after 10 days, you are fit enough. But yes, COVID appropriate behavior has to continue, must continue, and mask wearing is mandatory. So there is no escape from it. And finally, because there are certain institutions which ask that you need to be negative, and then you come up. But remember one thing, if you remember when we started, we used to talk about 2 negative tests. Now we don't insist for that much, but after 14 to 15 days on an average, the government itself in its GO, the government out of Government of India to the various state governments have approved up to 3 weeks of leaves, extendable up to 4 weeks. But it all depends how much damage it has caused to our lungs. And I do agree with you, the post-viral asthenia we used to call, now it has become post-COVID asthenia, which means the weakness may persist, fatigue may persist, there will be a lack of energy, loss of energy, which are real one, and one keeps on doing it. And low-grade fever sometimes do come back. So these are the very common things. People come up, and you must have heard people say, I have no energy, there is lack of energy. So these are real problems which are there, besides the maximum front, as Dr. Bhalla has said, the specialty of which I practice, or which Dr. Ved practice at KGMC, is the pulmonology. And we do see nearly of the 100 people, let's say, who get lung injury in the acute stage, probably normalization lung functions may take anywhere up to 6 months. And the data which is now coming up is that probably 1/3 of the patient may continue to have breathlessness or lung symptoms even up to 1 year. यस डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारे एक दर्शक महेंद्रगढ़ हरियाणा से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र, अपना सवाल पूछिए। हाँ, सभी डॉक्टर साहिबान को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैंने मिसेज को 8 तारीख को कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई थी। मिसेज की एज 54 ईयर्स है ओल्ड। तो डॉक्टर साहब, 8 तारीख को कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई थी मैंने, उसके बाद उनको बुखार कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, आपने वैक्सीन 8 को लगाया, 1 या 2 दिन बुखार हम एक्सपेक्ट करते हैं वैक्सीनेशन के बाद आए। आज 11 तारीख है, तो अगर आपका कल बुखार नहीं सेटल होता तो आप जाके अस्पताल में जांच करा के आइए कि ये क्यों हो रहा है। 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि
बॉडी का रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा है, अगर वो है तो उसके आपको इलाज कराना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज़ जो हम बड़ी कॉमनली देख रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद, जो फीवर आ रहा है, कई लोगों के अंदर काफ़ी परसेंटेज मात्रा में कोविड पॉजिटिविटी हो रही है। आप ये मत भूलिए कि आप जब वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक हो, प्री सिम्प्टोमेटिक हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि अगर आप उनका रात को बुखार ठीक नहीं होता है तो कल आप जाके डॉक्टर को दिखाइए, और अगर जरूरत हो तो आरटी-पीसीआर का टेस्ट भी कराइए। डॉक्टर ध्रुव चौधरी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होने के कितने दिनों के बाद वैक्सीनेशन करा सकता है? देखिए, इसमें डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, ये बड़ा कॉमन कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन का कारण ये है कि जो बाहर से गाइडलाइंस आई हैं और जो भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है उसमें डिफरेंस है। ये इस विषय में ये सोच के गाइडलाइंस बनती हैं और बनाई जाती हैं कि अगर आपको एक वायरल इन्फेक्शन है, आप कब तक आपके शरीर में उस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी रहती है, वो बनी रहती है। इनिशियली जो डाटा आ रहा था उससे लोगों को लगा कि प्रॉब्लली आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो गई हैं, एंटीबॉडीज कम हो गई हैं, तो हो सकता है कि आपको जल्दी बुखार हो जाए या जल्दी दोबारा इन्फेक्शन हो जाए। मैं थोड़ा लंबा आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके माध्यम से दर्शकों को। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने लगभग 20,000 मेडिकल वर्कर्स का, हेल्थ केयर वर्कर्स का फॉलोअप किया और टोटल इंसिडेंस उन्होंने लगभग 9 महीने में 10% से कम में पाया कि दोबारा री इन्फेक्शन हो सकता है 9 महीने के ऊपर। 85% लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, 10% के अंदर लगभग माइल्ड डिजीज हुई और बाकी 3 और 4 के अंदर वो कुछ उसको कह नहीं पाए। कहने का अभिप्राय ये है कि लगभग 80 से 90% को अगर एक बार कोरोना हो जाता है, अच्छा उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। जैसे मुझे दूसरी बारी हुआ कोरोना, इसका मतलब ये है कि हो सकता है मुझे वैक्सीन भी लगा था लेकिन माइल्ड डिजीज हुई, गला खराब हुआ, खांसी हुई, लेकिन सीवियर बीमारी नहीं हुई। जब हमने अपनी एंटीबॉडी चेक कराई तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम थी, लेकिन हमको ये मालूम हो रहा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है। मैं आपको जो बात कहने का मेरा अभिप्राय सिंपल सा ये है कि सीडीसी गाइडलाइन जहाँ सबसे पहले आई या इंग्लैंड से जो पब्लिक हेल्थ ने दिया, उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया कि अगर आपने प्लाज्मा लगवाया है, आपने कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट लिया है, या आपको उसी को एक्सट्रापोलेट करेगी इन्फेक्शन हुआ है, तो आप प्रेफरेबली 3 महीने के बाद टीका लगाएं। लेकिन भारत सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप ठीक हो जाते हैं कोरोना से, ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद, जो कि रफली 28 डेज के बाद का पीरियड बनता है, आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। उनका आइडिया सिर्फ यही है कि आप उस पीरियड का एडवांटेज उठा के एक बूस्टर इफेक्ट करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बना सके। लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस में, डॉक्टर भल्ला भी बैठे हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी हैं, बाय एंड लार्ज हम रिकमेंड करते हैं 3 महीने के बाद आप एंटीबॉडी अपना वैक्सीन लगवाइए। जी, Amrit? All right. Dr. Ved Prakash, this gentleman, Sunil Kumara, wants to ask you a question on our social media page. He wants to ask you by name. He says, सर से पूछना था कि मेरा आज कोरोना पॉजिटिव आया है, मेरे लंग्स से थोड़ा बहुत ब्लड आता है लेकिन सांस नहीं फूलती। डॉक्टर इस डिजीज का नाम पोस्ट टीबी sequel, that's how I know, I don't know what the correct pronunciation of it is, बता रहे हैं। सर से पूछना है कि क्या ये प्रोग्रेसिव डिजीज है? अमृतपाल जी, जो सुनील कुमार जी का जो सवाल है, मुझे लगता है कि इनको पहले टीबी की बीमारी रही है, लंग्स की, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बाद इनको ये एक सीक्वेल है, कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें फाइब्रोसिस या फिर कैविटेटरी लीजन्स बचे रह जाते हैं सुनील, तो उसमें से कभी ब्लड आ सकता है। ऐसे में उनको ट्रीटमेंट भी पता होगा। जब बार बार आपको ब्लड आता है तो आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक तो आराम करने को कहा जाता है, आपको कफिंग को सप्रेस करने के लिए सिरप दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक्स उसमें ऐड की जाती हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप लेते रहे होंगे बीच बीच में,
लेकिन जो कोविड है वो अलग है। और आपको अपने जो डॉक्टर हैं, जो पल्मोनरी के एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में जरूर आपको रहना चाहिए एक ओपिनियन में, उनके सुपरविजन में आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में उनको जानकारी है, और कोविड का जो ट्रीटमेंट है उसको आप जल्द से जल्द प्रारंभ कर दें। जी डॉक्टर साहब, And is it, Shara, 1 second, because जी। this gentleman again asks, is this a progressive disease? यस, We cannot say, Sunil, the disease progression of tuberculosis, we cannot say simply by the hemoptysis. जो हेमोप्टाइसिस है ये आ सकती हैं आपको, और इसके मायने ये नहीं है कि आपको दोबारा टीबी हुई है या दोबारा से आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको जांच करानी पड़ेगी कि जो हेमोप्टाइसिस आ रही है वो एक्टिव टीबी की वजह से है, आपको कोई और सिम्टम भी होंगे अगर ऐसा होता है, जिसमें कि फीवर आना या भूख कम लगना, वजन गिरना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं टीबी के लिए, वो भी यदि हैं तब थोड़ा चिंताजनक होता है और फिर जांच कराने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज जो पोस्ट ट्यूबरकुलर के जो सीक्वेल हैं, जिनमें फाइब्रोसिस हैं, कैविटेटरी लीजन्स हैं, जो रेजिडुअल फाइब्रोसिस हैं, उसमें जो एन्यूरिज्म बनती हैं, उनकी वजह से कभी कभी ये ब्लड आ सकता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है, यदि आपको ज्यादा बार बार आता है तो एक सर्जिकल ओपिनियन भी लेना पड़ सकता है बाद में, और आपके इन्वेस्टिगेशंस जो स्कैनिंग होंगी, सीटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी, उसके बाद ही ये इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि कितना एक्टिव है या कितना आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता है। तो आपके जो डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर, उनसे आपको दिखाना चाहिए। लखीसराय बिहार से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी का 2008 में मेट्रियोर वाल्व का बैलूनिंग हुआ है, तो जी पूछिए। तो हाँ, तो उनको कोविशील्ड दिलवाना सेफ रहेगा या कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? डॉक्टर आशीष भल्ला। जी, ऐसा है कि जो भी मरीज हैं जिनको पुरानी हार्ट की, लंग की, लिवर की कोई भी तकलीफ रही हैं, उनको वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। अब इनको अगर वो कह रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम पहले रह चुकी है, वाल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है, जो भी वो दवाई खा रहे हैं वो दवाई बैलूनिंग हुआ है। हाँ, बलूनिंग भी एक तरह का ऑपरेशन है, बलूनिंग भी एक तरह का ऑपरेशन है, नॉन इन्वेजिव है, पर उसके बाद भी आपको कुछ दवाइयाँ उन्होंने दी होंगी, एंटीकोएगुलेंट, एसिट्रॉम या वारफरिन कुछ दिया होगा। तो अगर आप वो ले रहे हैं, वो दवाई आप लेते रहिए, अपने लोकल वैक्सीन सेंटर पे जाएं और वैक्सीन लगवाएं। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो आपको अपना INR पहले देखना पड़ेगा, खून कितना पतला है उसकी जांच करना पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन से ब्लीडिंग होने का कुछ थोड़ा रिस्क रहता है अंदर, अगर आपका INR ठीक नहीं हो। तो अपने जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे जो आपके डॉक्टर साहब हैं उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको पूरी तरह जांच के बारे में बता के आगे वैक्सीन लगाने के बारे में समझा पाएंगे। डॉक्टर भल्ला, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल प्रेरणा पूछ रही हैं। उनकी उम्र 22 साल है और अभी 4 महीने पहले उन्होंने लंग सर्जरी कराई है। कोई फीवर नहीं है, ना कुछ डायबिटिक, ना BP। क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? देखिए, अब ये लंग सर्जरी किस कारण से हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उनका लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको सर्जरी से रिमूव किया गया है, या जो भी कुछ उनका ऑपरेशन जिस भी किस्म का हुआ है, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन अगर उनका लंग कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हाँ, उनको वैक्सीन लगाने की जरूर आवश्यकता है। जी, थैंक यू। All right. This gentleman asks Professor Chaudhary,
सर मेरे को कोरोना हुआ था लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ, माइल्ड इन्फेक्शन था, 10 दिन हो गए हैं, कल मुझे इंजरी हो गया, क्या मैं टेटनस का इंजेक्शन ले सकता हूँ? प्रोफेसर चौधरी। आंसर इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस, देयर इज नो कंफ्यूजन। देखिए वैक्सीन को लेके बहुत सारे मिथ्स एंड वो हैं, जैसे डॉक्टर भल्ला ने बहुत साफ कहा, प्रैक्टिकली अगर किसी को वैक्सीन के प्रोडक्ट से एलर्जी है, उसके अलावा हमको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी भी तरह से वैक्सीन की नहीं है। यही डॉक्टर आशीष कहना चाह रहे थे, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। दूसरा, वैक्सीन अगर आपको 2 लगाने हैं जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा कहते हैं कि 1 हफ्ते का टाइम रखिए। वो इसलिए रखिए कि अगर किसी एक वैक्सीन से कोई दिक्कत हो तो वो आपको पता चल जाए। अगर आप उसको साथ लगाएंगे तो ये आप नहीं समझ पाएंगे कि किससे दिक्कत है। मेरे ख्याल जो दर्शक और श्रोता ने जो सवाल पूछा था उनका जवाब उनको साफ मिल गया हो। All right. Dr. Ved Prakash, Anurag Bharadwaj says, my 2-year-old baby is in the habit of breastfeeding. Can my wife take the vaccine? देखिए अभी जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए उसमें इंक्लूड हुआ नहीं है ट्रायल में शायद अभी तक, तो इसके लिए कुछ दिन में ही मुझे लगता है कि गाइडलाइंस आ जाएगी जल्दी ही, तो उनको वैक्सीनेट कराने के लिए गाइडलाइन आपको जल्दी मिल जाएंगी। जी मैं थोड़ा सा वेद इसके अंदर बड़ा सीधा जवाब दे रहा हूँ। आप जी 2 साल के बच्चे के अंदर हमें हिंदुस्तान में है इस समय ब्रेस्ट फीडिंग की इतनी जरूरत नहीं है, पहले पर अगर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, मदर आराम से वैक्सीनेशन ले सकती हैं। डाटा आ रहा है, क्लियर कट आ रहा है, इंग्लैंड से आया है, अमेरिका से आया है, और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर भल्ला भी इस पे कुछ कमेंट करेंगे कि फाइनल 3rd ट्रिमेस्टर के अंदर जो प्रेगनेंसीज में लगा है उसके अंदर ये सेफ रहा है। खास तौर पे जो आपका मॉडर्ना का वैक्सीन है, आपका जो सा आपका फाइजर का है, इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ अपना देसी कोवैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। सो 3rd ट्रिमेस्टर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, और जो गाइडलाइंस की बात हो रही है जल्दी आप देखेंगे। दूसरा, जब आप लैक्टेशनल कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं, और ये क्लियर कट दिखाया गया है कि माँ के गर्भ से अब बच्चा जब पैदा होता है, जब एंटीबॉडीज हैं वो न्यूनेट में जा रही हैं, क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट है, सेफली डाटा देखा गया है। तो मेरा अपना मानना है कि लैक्टेशन में किसी किस्म की दिक्कत नहीं। हाँ, प्रेगनेंसी में खास तौर पर अगर आप लाइव वायरसेस यूज कर रहे हैं उनके लिए हमें परहेज हो सकता है, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए या किल्ड वैक्सीन हैं वो आप 3rd ट्रिमेस्टर उसके आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। Professor Bhalla, would you like to comment on this, please? Absolutely right. Dr. Dhruv has absolutely put it apt. Although we do not have the guidelines for vaccination in pregnant women with Covishield. Remember, whatever the vaccines which we have, they are all inactive virus vaccines. None of them is a live virus vaccine. So inactive virus vaccines can be given, but till now they are not there in the guidelines. As Dr. Dhruv said, in beyond 2nd trimester, there should be no issues with vaccination with killed virus, definitely. With the inactivated adenovirus vaccines, let the guidelines be there. And lactation period, whatever we consider, is up to 6 months. Beyond 6 months, you have to start, weaning the child. If you have still been breastfeeding for up to 2 years, I see there is no contraindication to taking the vaccine. And the vaccine should be taken if you are above 45, and you are a candidate for getting the vaccine. You should go and get yourself vaccinated. डॉक्टर साहब, सुकेंद्र सिंह पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सवाल पूछिए अपना। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो वैक्सीन है इसमें एल्युमिनियम पड़ता है क्या, और अगर पड़ता है तो क्यों पड़ता है, इसके क्या बेनिफिट्स है? डॉक्टर वेद प्रकाश।
जो जो वैक्सीन्स हैं अभी उनमें एल्यूमिनियम का जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में तो ऐसा जानकारी अभी नहीं है एल्यूमिनियम के बारे में, लेकिन वैसे तो कुकिंग के टाइम बोलते हैं एल्युमिनियम बिल्कुल हार्मफुल है। देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। इसके अंदर एलजेल डलता है, एलएम डलता है थोड़ा सा, वो इम्यून बूस्टिंग के लिए होता है और ये आमतौर पे किल्ड वैक्सीन के अंदर डलता है और ये आपको इम्यून मॉड्यूलेशन करने के लिए डलता है। और इसी तरह से जो कोवैक्सीन में जो सबसे स्मार्ट चीज की गई, जिसको ये साइनोवैक से डिफरेंट है, इसके अंदर हमने एक IMDG प्रोडक्ट और डाला जो कि टोल लाइक रिसेप्टर्स आते हैं बॉडी में जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि किल वैक्सीन में आमतौर पे ये सोचा जाता था कि जो टी लिम्फोसाइट्स है वो काम नहीं करते, सेल मीडिएटेड, इट्स मोर वर्क ऑन एंटीबॉडी। बट जो कोवैक्सीन में किया उन्होंने, उसके कारण अब आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्लस एंटीबॉडीज और नेचुरल किलर सेल की स्टिमुलेशन है। तो ये जो सा ये एलजेल डलता है, ये कॉमन इंग्रेडिएंट है वैक्सीनेशन में और स्पेशली किल वैक्सीन में उसकी इम्यून बूस्टिंग करने की। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष भल्ला, जैसे कि हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि इन्फेक्शन से लड़ाई के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो भविष्य में हमें इस संक्रमण से बचाने का काम करती हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का लेवल पोस्ट कोविड कितना है? देखिए, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि अब मुझे इन्फेक्शन हो गया, मैं माइल्ड सिम्टम्स थे या मुझे सीवियर सिम्टम्स थे या मॉडरेट सिम्टम्स थे, क्या मैं अपनी एंटीबॉडी का लेवल करा लूं और क्या मैं, अगर मेरा एंटीबॉडी का लेवल 4 से ऊपर है तो क्या मेरे लिए प्रोटेक्टिव है और वो कितनी देर तक प्रोटेक्टिव रहेगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर ध्रुव से बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने कोई नहीं हो सकता कि उन्हें पिछले 1 साल में 2 बार इन्फेक्शन हो चुकी है, वैक्सीन लगा चुके हैं वो, फिर भी उनको इन्फेक्शन हुई। इसका मैं बड़ा सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा। आपके शरीर में जब भी एंटीबॉडीज होती हैं वो डिजीज से लड़ती हैं। इन्फेक्शन होने को कम करने के लिए नॉर्मली लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, जो आपके वैक्सीन जो होते हैं वो डायरेक्टली नाक में अगर लगाए जाएं और वो नाक की लोकल म्यूकोजा को इतना इम्यून कर दें कि वो वायरस को अंदर एंटर नहीं करने दे, या अगर वायरस एंटर करे तो उसको खत्म कर दे, तो उस तरह की इम्यूनिटी होती है। जितने भी वैक्सीन हमारे पास अभी हैं वो डिजीज मॉड्यूलेटिंग वैक्सीन हैं, वो आपकी डिजीज की सिवियरिटी कम करते हैं, इन्फेक्शन होने से नहीं बचाते हैं। इन्फेक्शन आपको अभी भी हो सकती है। इसका मतलब कि आप अगर किसी पॉजिटिव कोरोना वाले मरीज के कांटेक्ट में आए, आपके नाक में वो वायरस जाएगा, आपको शायद वो माइल्ड डिजीज कर सके पर आपको वो सीवियर डिजीज नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि अलग अलग स्टडीज ये कहती हैं कि 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने तक आपके शरीर में इन्फेक्शन कोरोना डिजीज होने के बाद एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव हो सकती हैं। तो ये जरूरी है, ये होती हैं, लेकिन वो आपकी डिजीज को माइल्ड कर सकेंगी, आपकी इन्फेक्शन को खत्म शायद नहीं कर पाए। आपको इन्फेक्शन हो पाए पर आपको माइल्ड डिजीज हो पाए, आपको सीवियर डिजीज नहीं हो पाए। माइल्ड सिम्टम हो, ऐसी सिम्टम्स नहीं हो जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन की या ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका लेवल हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उसका लेवल जानना बहुत जरूरी है। नहीं, प्लीज नहीं। आपके माध्यम से ये मैं प्लीज सारे दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि लेवल के पीछे मत भागिए। बहुत सारी एंटीबॉडीज शरीर में ऐसी हैं, बहुत सारे टेस्ट मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो आपकी एंटीबॉडी लेवल चेक करते हैं और वो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं भी होती हैं। हमारे शरीर में एक वायरस जब एंटर करता है तो बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है अलग अलग कंपोनेंट से। कुछ उसमें वायरस न्यूट्रलाइजिंग होती है, कुछ उसमें वायरस न्यूट्रलाइजिंग नहीं होती हैं।
तो वो अगर एंटीबॉडी लेवल आप करा लें, वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हो, वो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल जाएं, तो आपको शायद सीरियस इलनेस होने का खतरा हो सकता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहे और एंटीबॉडी लेवल व्हाटएवर इट इज है या नहीं है उसको भूल जाएं। इन्फेक्शन आपको अगर पहले डिजीज हो चुकी है, कोरोना हो चुका है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आपको इन्फेक्शन हो तो आपको माइल्ड डिजीज हो, सीवियर डिजीज नहीं हो। Absolutely. And shall I think दूसरा है, let us- आप yes, Professor, please go ahead. Yeah. What Ashish said is very right. But I think there is another question which was put was in terms of plasma donation. I think we should remember we have 3 different values we are looking at it. और वो हमें एंटीबॉडी लेवल्स करके देखना पड़ता है क्योंकि कौन सा प्लाज्मा एप्रोप्रिएट है। इसी तरह से जिस मरीज को प्लाज्मा देना है उसमें भी हमें देखना पड़ता है एंटीबॉडी का। जो डॉक्टर आशीष भल्ला ने कहा वो जनरली बाय एंड लार्ज 80 से 90% ट्रू है। लोग आजकल बाजार में जाते हैं, अपना टेस्ट कराया और उसके हिसाब से फिर वो आगे चलते हैं, उसको हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। जो डॉक्टर आशीष कह रहे हैं, जो प्लाज्मा है वो 3 तरह के टेस्टों से हम चेक करते हैं। आप अलाइजा से कर सकते हैं, आप कैमिलोसेंस मेथड है और एक न्यूट्रलाइजिंग है। बेस्ट इसमें जैसे डॉक्टर भल्ला ने कहा वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, उसकी एक हम पर्टिकुलर टीटर जिसको बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं, वो अगर अप्रोप्रिएट है और अगर उस पेशेंट से हम प्लाज्मा डोनेट करें तो उसका असर ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब बीमारी शुरू हुई हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं था। अब जैसे जैसे डाटा आ रहा है, एविडेंस आ रहा है, वी रियलाइज कि अगर आपके अलाइजा से किया है, आपकी मात्रा 1:640 हो डिल्यूशन में, प्रेफरेबली 1:1280 हो तो और बेहतर। अगर आप क्लिया से करते हैं उसकी वैल्यू 13K यूनिट्स है, तो टेस्ट के हिसाब से वैल्यू बदल जाती है। और न्यूट्रलाइजिंग करते हैं तो प्रेफरेबली 1:40, लेकिन अगर 1:80 हो तो बेहतर है। तो ये सारे टेस्ट अलग अलग हैं, आपको अपने ब्लड बैंक पे विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन जैसे डॉक्टर भल्ला ने कहा, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं, डाटा ये शो करता है बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। इसी तरह से लिम्फोसाइट्स हैं जो टी सेल के हैं, जो याद रखते हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो आपके बी लिम्फोसाइट रिकॉल करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको हमने ये सोच लिया कि एंटीबॉडी कराया, आंसर मिल गया। क्वेश्चन इज नो, यू मस्ट नॉट गेट इट डन एक्सेप्ट अंडर ट्रायल सेटिंग्स, or you want to donate plasma, or anybody who's there, they want a recipient. Otherwise, there is no need for it. डॉक्टर साहब, सिद्धार्थ गौतम जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। सिद्धार्थ, अपना सवाल पूछिए। Good evening. Can you hear me? Yes, please. I have 3 questions. First question is, I already took my second dose last week. I'm high on energy. Everything is fine with me. There are no fever, no symptoms at all. So now, after taking the second dose, within the span of, because we don't have a data right now of how long the antibody will be intact in my body. So after 6 months or 8 months, any booster is expected, number 1. Number 2, 1918 pandemic, we remember that 4 waves have came. So do I have to take it into consideration that this pandemic also we are going to hit 4 waves? Second wave and third wave were very critical on 1918 pandemic. So here same, the second wave was gone out of control. Third and fourth wave. So do I have, because both are SARS-CoV. That is RNA, this is also RNA. Number 3rd is the last question. Any doctor can highlight me on the DRDO vaccine? Thank you. See, here's 3 questions. Do you want to take that? Yeah. I will take up the first question that as Dr. Dhruv has already said, that there are data which is available that up to 9 months post infection or post vaccine you have protective antibodies. Similar kind of data has also come from US, that for up to 9 months, if you have taken Pfizer or Moderna vaccine which have got vaccine efficacy of 95% plus, they provide you protection against the disease, severity of the disease. We do not have definitive data, but whatever the limited amount of data which we have with us is that these antibodies post-vaccine, after getting 2 vaccines, the second vaccine
at an interval beyond 8 weeks, 8 weeks or beyond that, there is a possibility that you might have protective antibodies for up to 6 months. Whether we would need a booster at that stage, we don't know, because under the vaccine pressure and the medication pressure, the viruses undergo plenty of mutation, and these mutated viruses, they tend to escape the vaccine immunity. So just like influenza, when we have a different vaccine coming every year, there is a possibility at some stage we might have to change the virus or the virus proteins which we are using to make vaccines, and may be able to give a repeat bolus. There is also some amount of data that if you mix and match the vaccines, if you've taken 1 dose of Covishield and 1 dose of Covaxin, you probably have a better immune response. But these are all experimental data as of date. The recommendations from Government of India say that you use only one type of vaccine. If you've taken Covishield, you take it after 6 to 8 weeks, or if you can delay it even more, probably better. And for Covaxin, it has to be after 4 weeks. That is the answer to your question number 1. The question number Ashish, 2. if you permit me, may I add one thing to this? Probably patients who are immunosuppressed, because I have been one of the investigators for Covaxin. That is where the promoters have been talking in terms of a booster, in this case for after the 6 months. But those people who are immunosuppressed, the data is still being analyzed. And probably to me, it looks that at this particular group, you may need an additional. Please go ahead with the second answer, please. Yes, yes, sir. I did not talk about immunosuppressed individuals because till date we do not have definitive guidelines for CKD patients, for immunosuppressed patients. We are giving them vaccines, but nobody has systematically studied their because response. We have the data, because we are doing the, we have been doing the trial, so we have the data. That is what I am saying. So from the experience which we have, probably they would need. They would need a booster at some stage or the other. Absolutely. The answer to your second question is that most of the pandemics, they have a lifespan of 2.5 to 3 years, 2 to 3 years. And, every time there is a major change in the virus antigen structure, you would get a surge. And till the time the entire population develops an immunity, and the susceptible population who cannot withstand the virus, they die. So this is one of the ways of achieving herd immunity along with mild asymptomatic infections is vaccination. So you have to speed up the vaccination to achieve efficacy, herd immunity. Till that time, if the virus mutates, you may get 4 to 6 waves. But as I said, if there is a partial cross immunity with one particular vaccine, you may at a later date not develop a very severe disease. You may get an infection, but you may not get a very severe disease. Dr. Ved Prakash, would you want to take his third question about the efficacy and your comments on the medicine that DRDO has produced? Amrit? Yes, sir. What is the question? Sir, he wants to know your opinion on the medicine that DRDO has produced. Okay, about the 2DG? So this gentleman who called us wants to know your opinion and your comments on the medicine that DRDO has produced, where DRDO says that this medication helps you fight corona and reduces your period of illness. Yeah, the Drug Controller General of India has granted the permission for the emergency use of the drug 2-deoxy glucose, that is 2DG.
as an adjunct therapy in moderate to severe COVID-19 disease, and the data so far is showing that it is reducing the hospital stay and the symptoms also. So let us see when it will be available and when we will use it. Then we can say the upcoming data will show the efficacy and other issues in more clearly in near future. All right. So, Dr. Chaudhary, would you want to comment on this, please? You see, these are early days. They have seen it and they have authorized with hardly 150 patients, even less than that. So I think we need to look at the data very more closely. I would like to comment on this. All right. Let Professor Chaudhary complete, Professor Bhalla, and you can answer then that. So I think it looks promising as what you said it, but as Dr. Ved Prakash said it, I think it's the future which will tell. But nevertheless, it's a very exciting and a promising development, and we need to be but open so that it should not go other way. Professor Bhalla. I would like to comment on this. The idea about this came from the initial studies where they said that in diabetic patients, and we know that in diabetic patients, you have a severe disease, and said that the virus utilizes the glucose within the cell to propagate. And if you starve the virus and do not let the virus have the glucose, probably it would not propagate to that extent. Now, as Dr. Ved Prakash said, these are early days. We still have to, analyze, critically evaluate the data which is coming. Within a day or two, the Ministry of Health is probably organizing a meeting to discuss whatever is the available literature and to decide that where and in what group of patients this drug can be recommended. So once those guidelines are out, discussed by the experts, we would have a better idea about the utility of this drug. I will just add one very quick line. Efficacy is one component of it, but we also need to see whether it is going to have any significant adverse effect, because when you use it in a trial setting, they are very compact, very closely you monitor it. So I think it's an early day. It's a good and exciting development. And what Dr. Ashish said is true. And how it affects other normal cellular metabolism, that as such will be important. The only problem what is happening is everything is running parallel concurrently, which used to be in series. That's why it is rising to these questions. जी बिल्कुल अमृत, हमारे पास सवाल बहुत हैं लेकिन समय कम है और इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना होगा। हमारे साथ हमारे 3 विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़े हुए थे। डॉक्टर आशीष भल्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर ध्रुव चौधरी और डॉक्टर वेद प्रकाश, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।